Hello, good morning, all of you F5 Econ Yes, students. ma'am. Good Good morning. morning. Good morning. Shall we Good start? morning. Good morning, all of you. Okay, so shall we start? Yes, ma'am. Okay, Yes, madam. Good morning, ma'am. good morning. Okay, today is BC lecture. Yes, ma'am. Our first chapter is over. Today I am going to start the second chapter. Okay, can you see my slide properly on the screen? Yes. Okay, Yes, ma'am. the chapter name is Impact of Technology Enable Communication. Okay, so we will discuss about that what is internet. Okay, over the last 2 or 3 decades technology has become more and more part of the daily lives. To point out or to point where it has taken our lives, take a moment, stop this post and look around you. What do you notice? Do you see tech gadgets? Means tech means technology gadgets, computers, video monitoring. Notice how our lives are surrounded by the gadgets and tech appliances. Okay, the PC and the desk and the cell phone next to your bed, the Wi-Fi router, even the most the example of how technology has transformed every aspect of our life. So good and others may not be so good. Okay, in this post, we are going to look at some of the latest feats in the technology and their positive and negative impact on our lives. Okay, so in the recent time, in the nowadays, can we imagine our life without um, can we imagine our life without technology? Can we imagine? Can we imagine? Yes or no? So in our daily life, from morning to the evening or from morning to the night, from morning to the No, night, ma'am. morning to the night, we are using so much technological devices which are really unable to useful or not. Whether we don't know, but we are using. Okay, that most probably in the recent time we are taking lectures online. You are using mobiles more than what you have to use. Okay, so these are the gadgets that it shows that our life totally depend on the technology. Okay, for example जैसे हमारा लाइफ का जो हम बोलते हैं 70%, ओके नॉट 70, 80% जो पार्ट है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है. टेक्नोलॉजी की जो डिवाइसेस है उसको हम इस्तेमाल करते हैं. तो सुबह से लेकर शाम तक हम ऐसा कौन सा भी चीज़ नहीं कि हम कभी इस्तेमाल नहीं किया है, कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे हाथ में कोई ना कोई तो डिवाइस रहता ही है. यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, Yes. जैसे कि हम अभी जितना ज़्यादा फॉर एग्जांपल मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी का जो पोजीशन है, अभी का जो सिचुएशन है, तो इंसान और जो यंगस्टर्स है तो ज़रूरत से ज़्यादा अभी इस्तेमाल किए जाता है मोबाइल. एम आई राइट? ज़रूरत से ज़्यादा हम Yes, ma'am. इस्तेमाल करते हैं. ओके, अगर किसी फॉर एग्जांपल किसी के पास टैब है, किसी के पास लैपटॉप है, किसी के Yes, पास ma'am. और सभी के पास हमारे घर में फॉर एग्जांपल 10 पीपल रहते हैं, तो कम से कम हमारे घर के 8 मेंबर के पास तो मोबाइल फोन्स हो गए ही होंगे. Even though if the elders have the mobile phone, they don't have the smartphone, but they have the cell phone. That simple one. Am I right? Am I right? Yes. Yes, ओके, ma'am. अभी Yes, ma'am. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल अभी सबने मोबाइल लिए, सबका रिचार्ज भी करते हैं, तो कभी कभी महीने का हम रिचार्ज करते हैं, पोस्ट और प्रीपेड, पोस्ट पोस्ट भी करते हैं और प्रीपेड वाला भी करते हैं. तो कभी कभी ये झमेले में ना पड़ते हुए घर में हम वाईफाई भी लगाते हैं. एम आई राइट? तो एक तरह से हम वाईफाई मीन्स जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं. ओके, तो उसकी कभी ना कभी हमको पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे दिखाई देती है. ओके, ठीक है, समझा? Yes, ma'am. ओके, अभी आप ये देख सकते हैं, ये पेड़ है, पर ये पेड़, हाँ बताइए कौन बोल रहा है? Yes, ma'am. ओके,
अभी ये पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, ओके। तो इसमें पत्तियां कितनी दिखाई दे रही है? पत्तियां ज्यादा दिखाई दे रही है? पक्षी ज्यादा दिखाई दे रहे नो हैं? मैम। नहीं। इसमें ज्यादा आपको क्या दिखाई दे रहा है? टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी का डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है, ओके। तो कुछ सालों के बाद नेचर की भी हालत ऐसी होने वाली है, ओके। नाउ वी विल डिस्कस द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, ओके। स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन, it was just over the decade ago when cell phones were primarily used for calling and sending text. Today, the uses of cell phones run the gamut. The phones do everything from talking high resolution pictures to watching pixel perfect videos, browsing the internet to playing graphic intensive games to monitoring your movements. अभी ये पॉइंट हमको समझ में आता है, जैसे मैंने अभी बोला कि जो पहले सेलफोन, शुरुआत में जो सेलफोन आए थे, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम बात कर सकते थे और टेक्स्ट मैसेज कर सकते थे। लेकिन अभी का जो रिसेंट टाइम चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, रिसेंट टाइम में मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो सेलफोन तक सीमित नहीं रहा, स्मार्टफोन बन गया है। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिया है टाइटल दिया है स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन, क्या चेंजेस आए, ओके। तो पहले व्हाट्सएप थे, 5-6 साल की बात करें तो पहले व्हाट्सएप थे क्या? वीचैट, व्हाट्सएप, ट्विटर, नो मैम। नहीं। नो मैम। लेकिन अभी अभी जो रिसेंट टाइम में हम इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या हुआ है कि कम्युनिकेशन का एक जरिया बढ़ता गया है, ओके। तो वो पॉजिटिव भी कभी रहते हैं और नेगेटिव भी रहते हैं। फिर हम जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वीडियो गेम के लिए तो दे आर वेरी क्रेजी फॉर दैट, ओके। तो वीडियो गेम की वजह से वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो गेम खेलते हैं और अपना दिमाग का इस्तेमाल कहीं भी करना नहीं है उनको। एक तो ऐसा हो सकता है कि जो हम ये कर रहे हैं कि बाबा इस्तेमाल करें, लेकिन हम खुद वहाँ पे कोई सर्च नहीं कर रहे। कोई सर्च हो रहा है वहाँ पे? कोई सर्च हो रहा है वहाँ पे, यहाँ पे कि हमने खुद कोई एप्लीकेशन सर्च किया है? नहीं। जो एप्लीकेशन ऑलरेडी है उसको सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं, वी आर यूटिलाइजिंग दैट, ओके। द एडवांस स्मार्टफोन हैज simplified our lives immensely. People now connect with their loved ones more frequently and easily through video calls and instant messages. तो एक इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव व्यूज है कि फॉर एग्जांपल हमारे जो रिलेटिव्स है, हमारे जो डियर वंस और नियर वंस जो हमारे दूर से मीन्स हमारे से दूर रहते हैं, हाँ, तो उसके साथ हम कनेक्शन बनाने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए एक स्मार्टफोन का एक एडवांटेज है कि आप कभी भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, ये उसका प्लस पॉइंट है। लेकिन जब पास में जब आप सोचिए कि ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, ओके। तो जब पहले शुरुआत में आपको शायद याद होगा एसटीडी बूथ वगैरह, आपको देखा है एसटीडी बूथ कि यस मैम, देखा है। हाँ, तो यस। एसटीडी हाँ बूथ देखा मैम, था। यस तो मैम। उस टाइम एक मीन्स 1 मिनट का बात करने का, अगर आप स्टेट टू स्टेट बात कर रहे हैं, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में बात करते, 1 मिनट का 16 रुपया होता था। लेकिन अभी क्या है, ओके, अभी चेंज हो गया है। तो जब हम आउट ऑफ कंट्री बात करते थे तो उसका पैसा डबल होता था पास में, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया कि हम इजीली बात कर सकते हैं, इजीली हम कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, सभी डिवाइसेस इंस्टेंट आपको फैसिलिटी दे रहे हैं। टास्क लाइक क्रिएटिंग स्लाइड्स, रीडिंग ईमेल्स, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स डोंट रिक्वायर पीसी एनीमोर, ओके। तो पहले जब कंप्यूटर आए थे तो तभी जब भी पहले जैसे टीवी जैसे कंप्यूटर आए थे तो पीसी में से ही मेल होता था या क्रिएटिंग स्लाइड्स वगैरह क्रिएट किया जाता था, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट किया जाता था। लेकिन अभी जो हमारे मोबाइल फ़ोन है तो उसमें भी ये सब फैसिलिटीज़ आपको दिया गया है, लेकिन उसको सिर्फ आपको ढूंढना आना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। कि जैसे आप ज़्यादातर हम मेल इस्तेमाल नहीं करते डेली लाइफ में, बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ओके।
वी आर लिविंग इन द जनरल वे, मीन्स वी आर लिविंग इन द सिंपल वंस लाइफ। ओके, तो ये हमारा जो संबंध है मेल का, या कभी कभी संबंध आता है हर बार या हर रोज उसका संबंध आता है क्या? तो आपको पता है कि अपना कितना अपना मेल चेक किया, मेल बॉक्स आपने कभी चेक किया? हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, कितने बार चेक करते आप? कितना बार चेक नहीं करते चेक हैं? करते हैं। नहीं चेक करते, ज्यादातर उसका इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैसेजेस पढ़ते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अभी आपको पीपीटी बनाना हो तो पीपीटी आप वहीं पे बना सकते हैं? नहीं, मोबाइल में भी बना सकते हैं। ओके, मोबाइल में भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये सब कुछ कर सकते हैं। इन द नटशेल, द स्मार्टफोन एंड एप्लीकेशंस have changed the way we work, communicate, play. In addition, booming expansion of e-commerce and internet-based company is directly proportional to the rapid proliferations of smartphones. Okay, sorry, proliferation नहीं होगा, proliferation होगा। तो यहाँ पे जो स्मार्टफोन अभी जो काम करने का तरीका, स्मार्टफोन की वजह से क्या हुआ है कि काम करने का तरीका चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल कि गूगल पेमेंट शायद आपके पास होगा या नहीं होगा, शायद ज्यादातर नहीं होगा, कि है आप इस्तेमाल करते हैं गूगल पेमेंट, जी पे? यस मैम। ओके, तो आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं कि फॉर एग्जाम्पल अभी बैंक का काम करना है तो नेट बैंकिंग भी अवेलेबल है, आपको बैंक में जाने की जरूरत है क्या? अगर आपको नेट बैंकिंग मोबाइल पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करे और आपको आता है इस्तेमाल करना, तो बैंक में जाने की जरूरत है क्या? है नहीं। जरूरत नहीं। तो ये सब वो उसके पॉजिटिव टाइप मीन्स उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको दिखाई देती है। और जो कंपनियां तो ई कॉमर्स और इंटरनेट बेस्ड कंपनी होती है तो डायरेक्टली जो जितना रैपिड स्मार्टफोन्स या रैपिड लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं उतना वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ओके, कि फॉर एग्जांपल अभी आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, जितना महंगा मोबाइल उतना उतना अच्छा स्टेटस, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कुछ होता है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होता है, आपके हिसाब से होता है क्या? जितना महंगा नो मोबाइल। मैम। नो ओके, मैम। नहीं मैम। आपने आपने 3 इडियट्स देखा होगा, 3 इडियट्स देखा है फिल्म? यस यस मैम। ओके, उसमें एक घड़ी का आपको एग्जांपल दिया गया था। ओके, 4 लाख की घड़ी टाइम वही दिखाती है और 250 की घड़ी टाइम वही दिखाती है। एम आई राइट? एम आई राइट? यस मैम। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं कि जितना ज्यादा महंगा मोबाइल लेते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए। पर लिया है और खो गया है, हाँ, 80,000 का मोबाइल लिया है, लेकिन उसका अभी आपके फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने आपने सोचा कि मुझे अभी 80,000 का मोबाइल चाहिए, तो इज इट प्रेफरेबल टू यू? प्रिफरेबल बोलने से मैं ऐसा आपको पूछूंगी कि अगर आपको अभी इसकी जरूरत है, 80,000 के मोबाइल की जरूरत है अभी नो अभी के मैम, लिए? नहीं जरूरत है। जरूरत नहीं है अभी आपका नो काम मैम। हाँ, अभी आपका जो रिसेंट टाइम का अभी आपका जो रिसेंट टाइम का जो रिसेंट टाइम में आपको जितना चाहिए उतना इस्तेमाल किया तो ठीक होगा। हाँ, लेकिन जब आप अच्छे से कमाएंगे, आपकी सैलरी अच्छी होगी, तो आप 80,000 का मोबाइल ले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। एम आई राइट? अभी उसकी जरूरत नहीं है। ओके, यस मैम। आगे देखेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, लेस एक्टिव लाइफस्टाइल। तो हमारी जो अभी की जो लाइफस्टाइल है वो कैसी है? थोड़ी सी कैसी है? कैसी है हमारी लाइफस्टाइल अभी की? लेस मीन्स लेजी वाली है ना, थोड़ी सी आराम के साथ है ना? हाँ, हाँ मैम। अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं आपका रिसेंट एग्जांपल, अगर आपको सुबह में 8:30 बजे अपना फिजिकली ऑफलाइन क्लास चालू हो गए तो आपको यहाँ पे 8:15 बजे आना होगा, तो आप जल्दी उठेंगे? जल्दी उठेंगे? यस मैम। ओके, हाँ हाँ मैम। मैम। अभी आप आराम से उठ रहे हैं। हाँ, 10 बजे 10 10 सवा 10 बजे लेक्चर स्टार्ट होते हैं, लेते हैं, कौन देखने वाला है? ये थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है।
यस हाँ और यस नो? मैम। हाँ, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये आपको डिफरेंस दिखाई जरूर देता है, लेकिन जब हम ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो दूसरा आपको और क्या इम्पैक्ट दिखाई देता है? क्या इम्पैक्ट डेली लाइफ में आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं? अपनी डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट देखते हैं? डेली लाइफ का क्या इम्पैक्ट देखते हैं? डेली लाइफ में कौन सा इम्पैक्ट दिखाई देता है? डेली लाइफ में कौन सा इम्पैक्ट दिखाई देता है? कौन सा इम्पैक्ट दिखाई देता है? कुछ भी इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता डेली लाइफ में? कुछ भी इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता डेली लाइफ में? कॉन्वर्सेशन आई है। हाँ, इंटरेक्ट कर रहे हैं ना मुझसे, आप मुझे बात कर रहे हैं ना, कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता है? इंटरेक्शन ज्यादा दिखाई देता है? इंटरेक्शन ज्यादा दिखाई देता है? इंटरेक्शन ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन जहाँ चाहिए वहां पे नहीं दिखाई देता है ना? यस और नो? जहाँ यस चाहिए वहां पे नहीं दिखाई देता है। दूसरा एक एग्जांपल कौन सा देंगे? आपके घर में वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, रेफ्रिजरेटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ऑल गैजेट्स है, एसी भी होगा शायद किसी के घर में, फैंस, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, सो ऑल दिस डिवाइसेस, ओके, तो उसकी वजह से क्या हो गई लाइफस्टाइल आपकी? कंफर्ट जोन में इजी हो हो गए, गई है। इजी हो गए, कंफर्ट जोन में हो गए, लेकिन आप कैसे हो गए? आप कैसे हो गए? इजी हो गए? नो मैम। लेजी हो गए? लेजी हो गए? लेजी हो गए हम लोग। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, आप चल के जाना है कॉलेज, तो थोड़ा सा दिमाग में आएगा ना, कितना घंटा चल के जाना है? यस और नो? एक बार तो दिमाग में ये ख्याल आता है कि नहीं आता है? हाँ मैम। आता है ना? यस मैम। अभी कितना कंटाला है, अभी चल के जाने का मेरे पास गाड़ी नहीं है, आज रोते ही रहते हम लोग। ओके, कि फॉर एग्जाम्पल आपका गाड़ी रिपेयरिंग को दिया है, तो आपको एक घर में आपकी मम्मा ने आपको ऐसा बोल दिया कि चलो बाजार जाके आओ, ओके, तो आप जाना पसंद करेंगे? जाना नहीं। पसंद करेंगे? नो मैम। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके पास गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, हाँ, एक्टिवा नहीं है आपके पास। हाँ, लेकिन गाड़ी होगे तो क्या करेंगे? जाएंगे। जाएंगे, कितने बार जाएंगे? दो दिल में 10 बार। दिन में 10 बार, यही आंसर मुझे चाहिए था, दिन में 10 बार जाएंगे। हाँ, अभी तो गाड़ी तो मैं जाके आता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जो एक्सरसाइज बोलते हैं कि हाँ, वॉकिंग हम बोलते हैं, जो हमारा चलना वगैरह होता है, हमारी जो एक्सरसाइज होती है, जितना हमारा काम होना चाहिए, ओके ओके, एक्सरसाइज वाला उतना काम होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब हम पास्ट और प्रेजेंट की बात करते तो महिलाएं जितना किचन में काम करती, घर में सब, उस टाइम मेड नहीं थी घर में, थी काम काम वाले, मीन्स वर्कर्स दिखाई देते हैं हमको घर में उस टाइम? नहीं। दादी के टाइम, आपके दादी के टाइम नहीं, वो खुद काम नहीं। करते थे, खुद काम करते थे। ओके, अगर खेती बाड़ी का काम होगा तो दादाजी खुद काम करते थे खेत में। यस और नो? यस और नो? यस। तो Yes, ma'am. जो पुराना जो लाइफस्टाइल था, तो वो पुराना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, क्योंकि एक्सरसाइज वाला काम था, किसी को कुछ भी होता नहीं था। हाँ, किसी को बीपी की गोलियां नहीं खानी पड़ती थी, किसी को हार्ट अटैक नहीं आते थे, इजी, सिंपल, कंफर्टेबल लाइफ था, बस मेहनत वाला काम। ओके, अगर हमको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने मुर्गा बना दिया, आप मुर्गे बनाए कभी स्कूल में? मुर्गा बनाए कभी? पुराने दिन याद कीजिए। मुर्गा बने कभी बचपन में? यस मैम। ओके, बने ना? हाँ, लेकिन अभी बोला तो मुर्गा बन जाओ तो, अभी बोला तो, अभी बोला तो नहीं बनेंगे। नहीं बन सकते। क्यों? क्यों? हमारी बॉडी अभी फ्लेक्सिबल नहीं रही इतनी, हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं रही। एम आई राइट?
Am I right? यस मैम। क्योंकि हमको इतनी आदत Yes, नहीं है, ma'am. हमारी इतनी आदत नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बताया, अगर आपको प्रैक्टिस है, आप जिम एक्सरसाइज करने वाले इंसान है, जिम करने वाले इंसान है, तो आपको कितना भी एक्सरसाइज 1.5-2 घंटा करने को बोलेंगे तो आप करेंगे। शुरुआत में आपको बिगिनिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन बाद में हमको ये हैबिचुअल हो जाते हैं। ओके, प्राणायाम वगैरह करना। तो जब भी अगर किसी ने नहीं किया, उसको इस्तेमाल किया ना, तो वो जो इंसान करता है और जो इंसान नहीं करता, तो उसमें डिफरेंस दिखाई देगा, डिफरेंस दिखाई देगा। यस और नो? यस मैम। हाँ मैम। हाँ। हाँ तो मैम। उसको बोला कि अभी चलो 5 किलोमीटर दौड़ के आओ, तो इजीली वो दौड़ के आएगा जो एक्सरसाइज करने वाला इंसान है। लेकिन आपको बोला कि चलो 5 किलोमीटर दौड़ के आओ, तो फिर आएंगे, थकेंगे, सो जाएंगे। दैट इज द डिफरेंस। समझ में आया? समझ यस में मैम। आया? ओके। यस While smartphone revolution has made our lives easy, it has also made our lives lazy. Today, the whole world is our fingerprints. Thus, we don't have to work or move around like we did previously to get the things done. जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, वही यहाँ पे बताया है कि हमारे हाथ में हमारी फिंगरप्रिंट्स, हाँ, पूरी दुनिया हमारे हाथ में है। मोबाइल हाथ में तो पूरी दुनिया हमारे हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को आपको पूछा जाए कि इसका आंसर ढूंढो, हाँ, कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसका आंसर ढूंढो, तो पहले हम क्या करते थे? जब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो बुक में ढूंढो, डिक्शनरी में ढूंढो। ओके, डिक्शनरी ढूंढो, डिक्शनरी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी क्या है? डिक्शनरी में ढूंढने की जरूरत है? डिक्शनरी में ढूंढने की नहीं। जरूरत है? बुक्स में ढूंढने की नहीं। जरूरत है आंसर? नहीं। क्या No करेंगे? मैम। तुरंत क्या लेंगे? हाथ में क्या लेंगे? गूगल। मोबाइल फोन, और उस पर सर्च करेंगे, गूगल पे डालेंगे, इंटरनेट पे सब आंसर है। एम आई राइट? इंटरनेट पे सब आंसर है, यस। इजीली अवेलेबल है। तो आपने क्या मेहनत किया? आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ टाइप किया, आंसर उसने दिया, इंटरनेट ने दिया। आपने खुद का मेहनत कहाँ लगाया? लगाया क्या? नहीं। अगर हमारा बस चले तो हम ऐसे रोबोट बना दें कि हमारा सब काम रोबोट ही करें, हम कुछ भी नहीं करें। सब काम हमारा रोबोट ही करेगा, हम कुछ भी नहीं करने वाले। तो ऐसे रोबोट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होनी चाहिए। होने चाहिए? होनी अच्छी, चाहिए। नहीं होने होनी चाहिए चाहिए। कि नहीं नहीं होने होनी चाहिए? चाहिए। नहीं होने चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ओके, okay. Next point is our sentimental lifestyle and lack of physical activities can be partly attributed to the over dependence on smartphone. This is especially true for the young generation who are constantly glued to their cell phones. In the modern era, the cell phone addiction is having the negative impact on our lives. Care needs to be taken to deal with this issue in effective way. ओके, तो जैसे पिछली बार हमने थोड़ा सा, मैंने आपको सर्विशली बताया कि जितना हम ज़्यादा गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, जितना हम ज़्यादा स्मार्टफोन या जितना ज़्यादा हम टीवी देखते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे कहीं ना कहीं हमको नेगेटिव दिखाई देता है। मैंने जैसे आपको बोला कि अगर कोई सीरियल्स ही देख रहे हैं, ओके, पर्टिकुलर जो टिपिकल विमेन होती है जो सीरियल्स वगैरह देखती है, ओके, तो उनका सोचने का तरीका कैसा होता है? सोचने का तरीका कैसे होता है? वैसे ही होता है, हाँ टिपिकल। यस मैम। टिपिकल थोड़ा वैसे, थोड़ा सा टिपिकल होता वैसे है। टिपिकल होता है। ओके, अभी मैं आपकी यंग जनरेशन की बात करूं, ओके, इंग्लिश गाने लगा है, समझ में आ रहा है वो नहीं पता, लेकिन आपको वैसे ही गाने अच्छे लगते हैं। एम आई राइट? हाँ, ज्यादा आवाज वाले, यस। यस। हिप हॉप वाला, No मैम। ऐसे ही गाने हमको अच्छे लगते हैं। नहीं क्या, ये जनरेशन बोल रहे हैं, ये ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल करते, इन शॉर्ट, दैट व्हाट वी आर यूजिंग, दैट मोस्ट प्रोबेबली आवर computers, our cell phones, its negativity is seen our body language also, its negativity seen our lives also. Am I right? अभी जो बच्चे हैं, 16-17 साल के बच्चे या 15 साल के बच्चे, हाथ में मोबाइल आ गया, फोनोग्राफी देख लिया, फोनोग्राफी देखने का आदत लग गया,
तो फिर सोच भी कैसी होगी? सोच भी कैसी होगी? सोच भी कैसी होगी? घटिया ही होगी ना? वैसी होगी। वैसी ही होगी, क्योंकि हाँ। जैसा आप देख रहे हो वैसा आप सोच रहे हो, जैसा सोच रहे हो वैसे आप बन रहे हो। तो इट्स इन योर बिहेवियर। तो फिर ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें देखिए तो जिसका फिर आपको लिहाज नहीं रहता है कि हर एक लड़की के सामने रिस्पेक्ट से दिखना चाहिए, या आपका जो देखने का नजरिया होगा वो भी कैसा होगा? ऐसा भद्दा ही होगा, गंदा ही होगा। ओके, तो वो सोच, घटिया सोच दिमाग में भर जाती है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? यस मैम। ओके, यस मैम। अभी ये आपको एक इमेज दिख रही है, क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है? रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। ओके, उसका मतलब क्या हुआ? रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ उसका मतलब? ये इमेज आपको मुझे एक्सप्लेन करना है, कैसे समझाएंगे आप मुझे? रोबोट वगैरह बनाने वाले, रोबोट बनाने वाले, इंटेलिजेंस एजेंसी। इंटेलिजेंस एजेंसी। ये क्या पिक्चर है? आपको ठीक से तो दिखाई दे रहा होगा शायद। उसमें क्या क्या बताया, देखिए जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इंसान का दिमाग है ना, दिमाग नहीं रहा है वो, वो एक है ना मशीन बन गया है। अभी ये समझ में है। यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे फीचर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। एम आई राइट? ये फीचर्स Yes. दिखाई हाँ दे रहे हैं मैम। आपको। हाँ, तो ये जो है, तो उसमें क्या पे ये जो सिंबल है, ये किसका सिंबल है? म्यूजिक। म्यूजिक म्यूजिक का। ये म्यूजिक। ये म्यूजिक जो का। सिंबल है, ये जो सिंबल है किसका है? मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स। इसके नीचे भी देखिए, मैथमेटिक्स का है। एम आई राइट? ये मैथमेटिक्स का है। किसका ऑडियो चालू है? बंद कीजिए प्लीज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको किसका सिंबल दिखाई दे रहा है? सिंबल किसका दिखाई दे रहा है? प्लेयर्स का दिखाई दे रहा है, प्लेयर का। एम आई राइट? प्लेयर का। ओके, अभी ये जो है, ये जो सिंबल्स है, ओके, तो ये स्पेस का सिंबल्स है। हाँ, ओके, ये जो है तो केमिकल जो इस्तेमाल किया जाता है उसका ही सिंबल्स है। ओके, ये इंसान है, ये लैपटॉप है। ओके, अभी ये इसमें देखेंगे आप कौन सी चीजों में कहाँ पे भी हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा दिमाग चलाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल दूं, अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो जब आपको स्कूल में ये पढ़ाया जाता था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ाया जाता था, तो आप अपने हाथ पे करते थे। कुछ याद आ रहा है? टेबल्स याद हाँ आ रहे मैम। हैं? टेबल्स का हम इस्तेमाल करते हाँ। थे। ओके, हाँ लेकिन अभी मैम। हम क्या करते हैं? जब से आपने इस्तेमाल किया, क्या इस्तेमाल स्टार्ट किया, इस्तेमाल करना क्या, कौन सा स्टार्ट किया? कैलकुलेटर आपके हाथ में आ गए तो आप, कैलकुलेटर। हाँ, तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से क्या हुआ? हम कैलकुलेटर पे है ना डिपेंड हो गए। कैलकुलेटर पे डिपेंड हो गए। और जो टेबल्स थे, जो हम टेबल्स रट्टा मारते थे बचपन से लेके, रोज लिखते थे, हाँ, उसको इस्तेमाल करना क्या कर दिया हमने? बंद कर दिया। बंद कर दिया। ओके, बंद कर दिया। तो दिमाग दिमाग वहां पे काम करना कैसा हो जाता है? बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी बंद। मैं आपको पूछूंगी 15 7 का कितना होता है, तो सोचना पड़ता है हमको। एम आई राइट? अभी सोचना पड़ता है ना, 15 7 का कितना हुआ, तो अभी सोचना पड़ता है कि नहीं? लेकिन आपके पास कैलकुलेटर है तो वो तुरंत आंसर दे देगा। तो आपने अपना दिमाग लगाएगा वहां पे? अपने अपना नो दिमाग मैम। लगाया? नो नहीं मैम। लगाया। ओके, ओके, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी दिमाग नहीं लगाया, तो इसका मीन्स इसका मतलब क्या हो कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियली। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम मैसेज करते हैं, टेक्स्ट मैसेज या कुछ भी, ओके, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कुछ अच्छी कविताएं आए हैं, कुछ अच्छे मैसेज आए हैं, तो हम खुद बनाते हैं क्या उसमें? खुद नहीं। बना देंगे? नहीं। गुड मॉर्निंग का मैसेज है, फ्लावर्स वाला आपको किसी ने भेजा है,
तो आपने खुद बनाया है क्या? नहीं। नहीं, इट इज फॉरवर्डेड बाय समवन एल्स एंड यू आर गोइंग टू फॉरवर्ड टू समवन एल्स। कि किसने भेजा है, आप वो आप क्या कर रहे हैं, दूसरों को क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं। उसमें आपने कुछ अपना डाला क्या, नयापन नहीं। डाला क्या? नहीं। नहीं। तो उसका मतलब क्या नहीं। हुआ, हम रोबोट की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे, रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। एक एक बात जरूर सोचिए कि कंप्यूटर ने इंसान को बनाया कि इंसान ने कंप्यूटर को बनाया? इंसान ने कंप्यूटर को बनाया। इंसान ने लेकिन कंप्यूटर को बनाया। कंप्यूटर पे हम कैसे रोबोट की तरह नाचते हैं, रोबोट की तरह नाचते हैं। ओके, रोबोट जैसा हम बोलते हैं ना, रोबोट जैसा काम करता है एक मशीन, वैसे हम मशीन की तरह काम करते हैं कि हमारे जो हम बोलते हैं ना इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह कुछ भी, तो वो हमारे पास अभी रही नहीं। इमोशंस, फीलिंग्स, हमारा जो हम बोलते हैं कि अपनापन अपनों के लिए, वो अभी रहा नहीं। रोबोट्स की तरह मुझे काम है, अगर मुझे किसी के से काम है या किसी को मुझे काम किसी को मुझसे काम है तो मुझे 10 बार फोन करेगा। तो जब हम जनरली बात करेंगे तो कभी बोलेगा भी नहीं, स्माइल भी नहीं करेगा। तो उसका मतलब कुछ हुआ क्या, उसका मतलब कुछ हुआ क्या? नो मैम, नहीं। अगर आपको जब जरूरत है तो आप दिन में 10 बार फोन करते हैं। ओके, आप मुझे बताइए आप कितना अपना फ्रेंड्स को बर्थडे विश करते हैं, अपने रिलेटिव्स को बर्थडे विश करते हैं? कैसे विश थोड़ी करते सी हैं? ज्यादा लोगों को नहीं कर पाते। सबको। सबको करते हैं या ज्यादा लोगों को नहीं करते, लेकिन जो जो तरीका होता है बर्थडे विश करने का वो अलग होता है कि नहीं? कि हाँ, बहुत जो क्लोज है तो उसको हम रात को 12 बजे मैसेज करते हैं, फिर सुबह भी मैसेज करते हैं, या एक बार फोन करते हैं दिन में। ओके, व्हेन यू आर फ्री। एम आई राइट? एम आई यस राइट? मैम। ओके। यस लेकिन मैम। जो यस मैम। ज्यादा, जो नियर वंस एंड डियर वंस नहीं है, जिसकी जरूरत है, आपको पता है मुझे उसकी जरूरत है, काम में आता है बंदा, तो आप उसको कैसे मैसेज, आप क्या करोगे, बर्थडे विश कैसा करोगे? सिर्फ मैसेज करोगे। एम आई राइट? कॉल नहीं करोगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है आपके साथ? डेली होता है। लाइफ होता है ना? यस मैम। आप उसको सिर्फ आपका मैसेज करोगे, कॉल नहीं करोगे। ओके, तो वो क्या दिखाता है, वो आपको बात करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। टाइम तो है लेकिन आप बात में करना नहीं चाहते। टेक्नोलॉजी ने आपको बिगाड़ के रख दिया है ऐसा। इस्तेमाल करना है तो मुझे उसी टाइम पे इस्तेमाल कर कि जहाँ पे मुझे जरूरत है। एम आई राइट? एम आई राइट? यस मैम। ओके। अभी ये देखिए, दैट concept of internet. Can you remember a time when you could not tweet, post, email, blog, snap like someone online? Many people today have grown up being able to do these things. Okay, but there was a time when none of this was possible. What man this possible today, what we call internet. Okay, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब, if you remember our means, do you remember your old days? Do you remember your old days, school days? Yes. School Yes, days ma'am. when Yes. you didn't Yes, have ma'am. mobile phones, when you didn't have too much miss, at that time you had too much time for your friends, too much time for your relatives, too much time for your parents also. Am I right? Am I right? यस। यस। हाँ, अभी Yes, क्या हो ma'am. गया है, अभी क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, सबके अलग अलग कमरे हो गए। कभी कभी आपने सोचा है कि हम कभी एक साथ बैठ के खाना खाते हैं फैमिली मेंबर्स, जो उसमें हम बोलते हैं ना आनंद उठाना, वो तो हमको एंजॉय करना ही आता ही नहीं। आपने कभी सोचा है कि हम कभी एक साथ बैठ के कभी खाना खाते थे? हाँ मैम। हाँ मैम। अभी 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 क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली क्या हो रहा है, जनरल रेशियो कैसा है, अभी क्या हो रहा है, जनरल रेशियो कैसा सब है? लोग एक साथ नहीं रहते, अलग अलग रहते। सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं? नहीं। हाँ, आप अपने नहीं। कमरे में अपना मोबाइल फोन लेके या टीवी के सामने, इडियट बॉक्स के सामने बैठते हैं और खाना खाते हैं। एम आई राइट?
थाली में क्या खा Yes. कौन सा खाना परोसा है, उसका टेस्ट क्या है। सच्ची में आप बताएं, हम दिल से वहाँ पे जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ध्यान वहाँ पे होता है? नहीं। नहीं। नहीं होता है। नहीं। नहीं होता है। क्या? क्यों? कैसा बनाया है, मिर्च कम है, मसाला ज्यादा है, नमक कम है, नमक ज्यादा है, वो भी समझ में नहीं आता हमको। एम आई राइट? एम आई यस राइट? मैम। Yes. हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? Yes, ma'am. इतने खोए रहते हैं ना, इतने खोए रहते हैं ना हाँ कि हमको खुद को पता नहीं कि हम क्या खा रहे क्या हैं। कर रहे हो? तो एक्चुअली जो हमारा जो ट्रेडिशन है ना, जो पुराना वाला ट्रेडिशन, साथ में बैठ के, नीचे बैठ के या डाइनिंग पर बैठ के हम जो खाना खाते, वो ट्रेडिशनल अच्छा था। अभी का जो ट्रेडिशन जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो उसकी जो जगह है ना, जो अपनेपन की जगह है ना, तो वो ये टेक्नोलॉजी ने उसकी जगह ले ली है। हाँ, दिखाई देता है कि नहीं डेली लाइफ में? दिखाई देता है ना Yes, डेली ma'am. लाइफ में। ओके, तो यस मैम। ओके, अभी मैं आपको बोलूं कि जैसे अब जब आपके पास मोबाइल फोन नहीं था, ओके, तो आपका जो पढ़ने का जो तरीका था और अब का जो पढ़ने का तरीका है, उसमें डिफरेंस था? उसमें डिफरेंस था। Yes. डिफरेंस ओके। था। ओके, अभी मोबाइल फोन Yes. रहता है तो जरा सा मैसेज है तो देखना जरूरी हो जाता है। अरे भाई, इतनी क्या गई है, एम आई राइट? जरा सा मैसेज आ जाए तो देखना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। एम आई राइट? कि कुछ लोग तो ऐसे क्रेजी हो जाते हैं Yes. ना कि मोबाइल देखे बिना उनका सुबह में उठे तो भगवान का नाम नहीं लेता है। सुबह में उठे तो क्या होता है हाथ में? सबसे पहले क्या होता है? Mobile. मोबाइल होता है। ओके, अभी मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं कि मोबाइल होता है, सबके हाथ में मोबाइल ही होता है। ओके, पहले मोबाइल के दर्शन करते हैं, बाद में भगवान के दर्शन करते हैं भाई। यहाँ पे भगवान के तो दर्शन करते हैं। सही बात है कि नहीं? सुबह में उठ के अल्लाह का नाम लेना चाहिए कि नहीं, भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं? हर टाइम लेना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं करते। ओके, दूसरा कि जितना, दूसरा एक बताना है कि जितना हम उसको आवाज नहीं आ अट्रैक्ट, रहा मैडम आपका। एक मिनट, हेलो, जितना हम उसको अट्रैक्ट करते हैं उतना अट्रैक्ट वो हमको करता है। नहीं आ एम आई रहा राइट? क्लियर। जितना हम उसको अट्रैक्ट करते हैं कोई भी चीज को, उतना वो अट्रैक्ट करता है। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, वी शैल स्टॉप राइट नाउ। We shall stop right now. We will continue in the next lecture. ठीक है? ओके मैम। Okay. ओके मैम।